anti-anxiety drugs. So today we are going to discuss about the anti-epileptic drugs. So anti-epileptic drugs, these are also called as anticonvulsant. Anticonvulsant drugs are also an anti-epileptic drug treatment maintained for the 2 or more years, even a patient is free of seizure. यदि पेशेंट सीजर नहीं होते हैं लास्ट 2 ईयर और मोर देन 2 years, so that should be anti-epileptic treatment should be maintained by the patient. सो उसको हम देते रहते हैं। यदि वो फ्री हो जाता है, कोई भी सीजर्स वगैरह उसको प्रोड्यूस नहीं होते हैं, फिर भी हम 2 या 2 साल से अधिक अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर ऑर्डर्स वी हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। सो रिड्यूस द डेली डोज वी हैव दैट इज 25% एवरी 2 to 4 weeks। मतलब धीरे धीरे हम डोज को धीरे धीरे कम करते जाते हैं 25% एवरी 2 to 4 weeks के अंदर, सो दैट डोज शुड बी रिड्यूस्ड टिल द 2 years or more than 2 years. So that will be according to the doctor's order. So these are the anticonvulsant drugs. So classify the some of the drugs anticonvulsant or any anti-epileptic drugs are particular carbamazepine. ये तो Tramadol comes in the misolin. So misolin, that is a primadone. So carbamazepine, that is starting dose, we are starting the minimum dose from the 400 mg per day, and TDS should be given, that is divided doses 400 mg starting 400 mg हम स्टार्ट करेंगे तो 400 mg को हम TDS में डिवाइड करेंगे। मेंटेनेंस डोज जो होती है दैट शुड बी 600 to 1200 mg पर डे ओरली वी आर गिविंग। यदि हम इसको ड्रग को देने के बाद थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हम यदि चेक करेंगे तो दैट शुड बी 4 to 12 म्यूग्राम पर ml आएगा। ठीक है, सो दैट इज ए कार्बामेजेपिन। स्टार्टिंग डोज है 400 mg, मेंटेनेंस डोज जो होती है 600 mg to 1200 mg। यदि हम इससे ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज अ टॉक्सिसिटी विल बी डेवलपिंग इन द कार्बामेजेपिन। सो डोज शुड बी मेंटेन एज 600 to 1200, that should not more than, and there should not be exceed more than 1200 mg. So TDS that is given starting dose that is a 400 mg. Ethosuximide that is a 500 mg starting dose, that is a BD, 2 times we are giving. Then maintenance dose that is a 1000 to 2000 mg per day we are giving, and that therapeutic plasma concentration that is a 50 to 120 μg per ml, that is a therapeutic प्लाज्मा concentration that should be होना चाहिए। थेराप्यूटिक का मतलब होता है that should be maintained for the effective treatment for the particular disease. So that is a 52 to 120 μg per ml should be maintained when we are giving the drugs in the ethosuximide to the patient. Then oxcarbazepine. Oxcarbazepine that is 600 mg starting dose we are giving BD. 600 to 2400 mg we are giving, not established, that is plasma concentration is not establishing by the particular drugs. Phenobarbital that is a 90 mg we are starting per day, daily we are giving 90 to 120 mg per day orally we are giving 10 to 40 μg per ml. Therapeutic plasma concentration should be maintained. Phenytoin that is a Dilantin that is 300 mg starting dose, daily we are giving 300 to 500 mg we have to maintain dose per day. Then 10 to 20 μg per ml should be therapeutic plasma concentration. Then primidone that is a misolin that is a 100 to 125 milligram per day, and TDS can be given 750 to 1000 mg per day we are giving 5 to 12 μg per ml. Therapeutic plasma concentration should be maintained. Now we have to see the precautions of the epileptic patient. So precautions क्या क्या होते हैं epileptic patient के? Avoid sleep deprivation. ठीक है, जो sleep deprivation हो रहा है, sleeping pattern में disturbance हो रहा है, उसको हम avoid करते हैं। Use of the drugs should not be missed. कोई भी drugs को हमें डोज को हमें मिस नहीं करना है। Avoid sports and other activities. जो भी स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटी, जो पेशेंट यदि एपिलेप्टिक ड्रग्स ले रहा है तो उसका मतलब है कि द पर्सन इज हैविंग द अवॉइडेंस ऑफ द स्पोर्ट्स एंड अदर टाइप ऑफ हैवी एक्सरसाइजेस। अवॉइड द अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज।
मॉर्निंग। हाँ रितिका, मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं करता हूँ मैं आपको बात, ठीक है। So avoid the alcohol and substance abuse, then avoid the fatigue and emotions which precipitate epilepsy। जो क्या करते हैं हम, पेशेंट की फटीग एंड इमोशंस को अवॉइड करते हैं। जो हमारे यदि अवॉइड इमोशंस एंड फटीग ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एपिलेप्सी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हम उसको अवॉइड करते हैं कि पेशेंट को फटीग नहीं होना चाहिए और इमोशंस नहीं होने चाहिए ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, एपिलेप्सी ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगी। अवॉइड टू वॉच द टीवी में प्रेसिपिटेट सीजर, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं नॉट टू वॉच द टीवी एवरी टाइम, सो जो it may precipitate seizure. So these are the precautions we have to follow when the patient is taking the epileptic or anti-epileptic drugs. The next drug is the anti-Parkinsonian drugs. The anti-Parkinsonian drugs is the one of the Parkinson's disease, that is it is used to control the extrapyramidal side effect of the antipsychotics. जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहा है पेशेंट, उसका मेन साइड इफेक्ट क्या है, यदि एग्जाम में पूछा जाए, यदि प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन एंड मेन साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसाइकोटिक, दैट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट दैट इज इन द एंटीसाइकोटिक। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वी आर गिविंग द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स होती हैं वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, एमेंटेडिन होती है, एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए यूज की जाती हैं, पर्टिकुलरली न्यूरोलेप्टिक इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, एक्यूट डिस्टोनिया, medication induced tremor. So that is one of the condition we are using this type of anticholinergic drugs like amantadine and antihistamine. These are drugs we are using for the treatment for the medication induced movement. कोई भी ड्रग पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है रेगुलर, तो उससे जो भी मूवमेंट होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा या एबनॉर्मल मूवमेंट होगा, that is induced movement होगा because of the when the patient is taking medication, particularly the patient with the neuroleptic induced Parkinsonism, then acute dystonia and medication induced tremor। जो जिस पेशेंट को ट्रेमर आ रहे हैं या किसी पेशेंट को डिस्टोनिया हो रहा है या किसी पेशेंट को पार्किंसोनिज्म हो रहा है, उस कंडीशन में जो पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है तो उससे जो मूवमेंट होंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट होंगे, उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वी आर गिविंग द एंटीकोलिनर्जिक और amantadine then antihistamine। Then next move on the classification of the anti-Parkinsonian drugs. Anticholinergics are the trihexyphenidyl, benztropine, piperidine. So these are the anticholinergic drugs. Dopaminergic agents are the bromocriptine, carbidopa, levodopa. Monoamine oxidase inhibitors, type B inhibitors are salicylic. Then trihexyphenidyl, artane, trihexane, pacitane, and trihexy. So these are the some of the combination or content of the drugs in trihexyphenidyl. So these are the 4 categories in the anti-Parkinsonian drugs. Then what are the indication? In which indication we are giving the anti-Parkinsonian drugs? So those who are having the drug induced Parkinsonism and those who are having the management with the Parkinsonism. Then what are the mechanism of action? That is increase the release of the dopamine from the presynaptic vesicles, blocking the reuptake of the dopamine into the presynaptic nerve terminals। ये क्या करता है कि जो प्रीसिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं वहाँ से डोपामिन को रिलीज करता है, इंक्रीज अमाउंट में रिलीज करेगा और वापस से वो एक बार सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर चला गया तो उसको वापस रीअपटेक होने से रोकता है, ठीक है, ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ द डोपामिन इनटू द प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल। एक बार रिलीज हो गया, ठीक है, वापस से वो क्या होगा, रीअपटेक नहीं होगा, तो ये इंक्रीज रिलीज करता है डोपामिन। इसमें मेन रोल होता है डोपामिन का, जो प्रीसिनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होगा इंक्रीज अमाउंट में, जो रीअपटेक, जो हमारे डोपामिन के रीअपटेक को रोकेगी ये ड्रग्स इनटू द प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स की तरफ। Then what are the doses we are giving? Doses we are giving 1 to 2 mg per day orally we are giving. Maximum dose should be up to 15 mg per day orally we are giving. So
1 to 2 mg पर डे ओरली वी आर गिविंग, एंड मैक्सिमम जो है उस हम केवल 15 mg तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते पेशेंट। देन साइड इफेक्ट क्या होंगे? डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, नर्वसनेस, हेडेक, कंफ्यूजन, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिनरी रिटेंशन, डिक्रीज स्वेटिंग, माइटेसिस, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टेकिकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन। सो दीज आर द सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। डिजीनेस होने लगता है, पेशेंट को चक्कर आने लगते हैं, ड्राउजीनेस होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वीकनेस होने लगती है, नर्वसनेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, हेडेक होता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिनरी ज़्यादा रिटेंशन होने लगेगा, उसके बाद स्वेटिंग कम आने लगेगी, ड्राइनेस आ जाएगी स्किन के ऊपर, माइड्रेसिस होता है, डायलिटेशन ऑफ दी प्यूपल्स, एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होगा, पेशेंट को ड्राई माउथ होगा, ब्लड विजन होगा, ठीक है, देन पेशेंट को टैकिकार्डिया होगा, देन कॉन्स्टिपेशन होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी Parkinsonian. Then what are the nursing responsibility we have to follow in the anti-Parkinsonian drugs? So first we have to assess the Parkinsonian and extrapyramidal symptoms. Extrapyramidal symptoms की वजह से ऐसा होता है तो उसको हमें असेस करना है, और पार्किंसोनियन जो है उसको भी असेस करना है। एंड मेडिकेशन शुड बी इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम मेडिकेशंस को बढ़ाते जाते हैं, पहले कम डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद डोज हम बढ़ाते जाते हैं। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मेक द पोजीशन चेंजेस स्लोली टू मिनिमाइज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। वी हैव टू एडवाइज द पेशेंट टू गेट अप फ्रॉम द बेड और चेयर वेरी स्लोली टू प्रिवेंट द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। Instruct the patient about the frequent rinsing of the mouth, and we have to maintain the good oral hygiene. So good oral hygiene we have to maintain in the patient. Then cautions the patient that this medication decrease the perspiration. ये क्या करती है कि ये ड्रग लेने के बाद पसीना बिल्कुल नहीं आता है, स्वेटिंग नहीं आती है, तो उस कंडीशन पेशेंट को हम कॉशनली बताएंगे कि इससे परस्पायरेशन नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा हॉट वेदर जो होता है उसके अंदर उसके दौरान ओवर हीटिंग ज़्यादा होती है, बॉडी के अंदर ड्राइनेस हो जाती है, ओवर हीटिंग ज़्यादा होती है। सो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि इस कंडीशन में he or she has to follow some of the cautions. The next drug is the anti-abuse drug. Anti-abuse drugs are disulfiram therapy. आपने नाम सुना है इसका, I think you heard that disulfiram therapy. Disulfiram therapy we are giving to remove the person from the alcoholism. जो alcoholism होता है उससे हम पेशेंट को दूर रखते हैं, ठीक है, छुड़ाते हैं। तो we are giving the disulfiram therapy. Disulfiram therapy is giving for the alcoholic patient to remove the patient from the alcoholism. So it is a sensitizing agent होता है, causes an adverse effect which when mixed with the alcohol in the body. अब इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट को इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है कि जब पेशेंट अल्कोहल पीता है तो उसको उस अल्कोहल कंडीशन में क्या अल्कोहल उसको लगती है प्लीजेंट स्टिमुलस लगेगा उसको अल्कोहल। अब उसके बाद क्या होगा कि हम धीरे धीरे उसको अल्कोहल में मिक्स करेंगे, पेशेंट को छुड़ाना है हमें, तो जो प्लीजेंट स्टिमुलस है वो भी जो प्लीजेंट स्टिमुलस है ना वो अनप्लीजेंट स्टिमुलस भी प्लीजेंट लगने लगेगा। जो ड्रग्स हम उसको साथ मिक्स करके दे रहे हैं तो अनप्लीजेंट भी उसको प्लीजेंट लगेगा, तो उस कंडीशन में वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर कंडीशन को धीरे धीरे छोड़ता हुआ जाएगा। तो पेयर विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलस विद द प्लीजेंट स्टिमुलस, पेयरिंग करते हैं अनप्लीजेंट स्टिमुलस को प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ मिक्स करके हम उससे प्लीजेंट रिस्पॉन्स गेट करते हैं, प्लीजेंट रिस्पॉन्स उससे मिलता है। तो प्रोड्यूस ए रैपिड एंड वॉलेंटली एंड प्लीजेंट रिएक्शन इन ए पर्सन हु इंजेस्ट इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल व्हाइल टेकिंग द डाइसल्फिराम। एंड यूजेस, व्हाट आर द यूजेस? सो ट्रीटमेंट फॉर द अल्कोहलिज्म हम यूज क्यों करते हैं इसके लिए? अल्कोहलिज्म के लिए यूज करते हैं, यूजफुल फॉर द पर्सन हु आर मोटिवेटेड टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड हु आर नॉट इम्पल्सिव। ठीक है, अल्कोहलिज्म के लिए मेनली यूज किया जाता है यदि हम किसी पर्सन से अल्कोहल को छुड़ाना चाहते हैं एंड हु आर नॉट इम्पल्सिव, एंड इससे फिजिकल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट होता है वो उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। देन व्हाट आर द साइड इफेक्ट वी हैव सी इन द डाइसल्फिराम? हेलो हेलो
सर कोई ना बार बार मीटिंग से रिमूव कर रहा है। कौन कर रहा है? एक मिनट में ये चेक कर, एक मिनट में चेक कर रहा हूँ।